Our present discussion for class 11 accountancy. We have started the accounting equation chapter. 3-4 episodes also we have discussed, we have done the sums. The basic thing of this chapter, that the assets is equal to liabilities plus capital, that will be the equation. Left hand side must be equal to the right hand side by the effect of every transaction. This is the main thing. Whatever transaction will be coming before us, we have to get the meaning of that transaction. Then we have to think that that transaction has made the effect of increasing the asset or decreasing the asset. What is the name of that asset? Decreasing or increasing the liability, what is the name of that liability? Or it affects the capital by decreasing or by increasing. That is the main problem. That is the main factor. So what will be the effect of every transaction? That effect we have to show in the format of accounting equation. After that, whatever you know, that we draw the line and the present situation, whatever new equation forms, that we have to show. One transaction I am telling, suppose rent paid. Rent paid means it is an expense. The service is received already to stay and rent is paid right now. So amount paid, so cash paid, so cash will be decreased. And service is received already, so this will decrease the capital also. But if the transaction given rent paid by check, so rent paid by check ये एक्सपेंस है लेकिन कैश नहीं गया, हमने चेक दे दिया किसी को रेंट के तौर पे और उन्होंने चेक, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो चेक लेके बैंक में जाएगा, मेरा बिजनेस के नाम पे जो बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट से पैसा निकलेगा. दैट इज बैंक से माइनस होगा, कैश से माइनस नहीं होगा और कैपिटल से माइनस होगा. लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन दिया रेंट ड्यू बट नॉट पेड 2000 या रेंट आउटस्टैंडिंग 2000, that means what? For staying the service I have received from the landlord, but rent amount of 2000 is not paid yet now. That is to be paid. So what is to be paid? That is the liability, and that is the what kind of liability? That is outstanding expenses. That means creditors भी liability होता है, लेकिन कब होगा creditors, कब होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? यही ख्याल करना है कि कौन सा सिचुएशन में, कौन सा ट्रांजैक्शन में कौन सा लायबिलिटी फॉर्म करता है, उसका नाम क्या है. जब हम लोग क्रेडिट में खरीदते हैं, क्रेडिट में परचेस करते हैं और पैसा नहीं दिया गया, देना पड़ेगा, दैट इज द क्रेडिटर्स. एनीथिंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट, दैट इज द क्रेडिटर्स लायबिलिटी फॉर्म्स. बट इट इज द एक्सपेंस. Rent paid, expense, salary paid, expense, wages paid, expense, telephone bill paid, expense, insurance premium paid, expense. Whenever any expense is due, that is called the outstanding expense, different name of the liability. And in the liability side, we have to open the outstanding expense. There it will be added 2000 rent due. So outstanding expense में ये add होगा. और लायबिलिटी जो कैपिटल भी है, इंटरनल लायबिलिटी, वो कैपिटल से 2000 माइनस हो जाएगा. मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट का एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस हुआ और कैपिटल से माइनस हो जाएगा. इसी तरह इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, सब रिसीव हो रहा है. दैट इज कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस.
रेंट पेड कैश में माइनस, कैपिटल से माइनस, रेंट रिसीव्ड। बिजनेस का कोई एक घर ऐसे पड़ा हुआ है, किसी को भाड़ा दे दिया, वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। इंटरेस्ट रिसीव, बिजनेस का अमाउंट किसी को लोन में दिए थे या किसी जगह में इन्वेस्ट किए थे, जहां से इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। किसी कंपनी का, रिलायंस कंपनी का शेयर के पीछे इन्वेस्ट करके रखे थे, तो रिलायंस कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड देगा, अलाउ करेगा शेयर होल्डर को। तो हमारे बिजनेस के नाम पे शेयर खरीदा हुआ था, तो हमारा बिजनेस को डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड रिसीव्ड, तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। लेकिन यही इंटरेस्ट की, यही कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट मिलने का डेट था सपोज 30th जून, टुडे इज द 15th जुलाई, डेट इज ओवर ऑफ रिसीविंग, नॉट रिसीव्ड, दैट इज द एसेट, बिकॉज विल बी रिसीव्ड, वुड बी रिसीव्ड, दैट इज द डिफरेंट नेम ऑफ द एसेट। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मीन्स जो इनकम का मिलने का डेट निकल चुका है लेकिन पैसा मिला नहीं अभी तक, डेट इज ओवर बट अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड येट, नाउ वुड बी रिसीव्ड, दैट इज डिफरेंट नेम ऑफ द एसेट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट। सो एसेट साइड में अगर आपको क्वेश्चन दिया रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तब आपको लिखना है क्या, एक्रूड इनकम बोल के एक एसेट का घर में, एसेट साइड में एक घर खुलेगा, एक्रूड इनकम, वहाँ पे प्लस होगा, बिकॉज ये एसेट फॉर्म किया, मिलेगा, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ये इसी कंडीशन में रहेगा, और कैपिटल में प्लस होगा। आज से 10 दिन के बाद जब वो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, वैसा ट्रांजैक्शन का सामना करेंगे कि एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तब कैश में प्लस होगा, और एक्रूड इनकम का जो एसेट था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट कैश नाम का एसेट में बदल जाएगा। सो फिर रिसीव्ड इन एडवांस, अगर वो इंटरेस्ट मिलने का डेट अगर 30th जून था लेकिन 31st मई को मिल गया, दैट इज एडवांस में मिल गया, एडवांस में अगर पैसा मिल गया तब वो मेरे लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि आई हैव टू रेंडर द सर्विस, तो एक लायबिलिटी खुलेगा अलग से, नाम होगा उसका क्या, रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम, एक लायबिलिटी खुलेगा। सो सेंटेंस का मतलब समझना है, प्री रिसीव्ड इनकम बोल के लायबिलिटी खुलेगा और वहां पर प्लस होगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, एक लायबिलिटी फॉर्म किया और कैपिटल नाम का इंटरनल लायबिलिटी डिक्रीज किया। सो आई जस्ट विल गाइड यू, सजेस्ट यू, consult the book and see very carefully the illustration sums. Various types of transactions are given there, so please consult with the illustration book and do 1-2 sums from the practical, and whatever item terms I have discussed right now, which transaction will have the what kind of the effect, just keep in mind and do the sum. Practice makes a man perfect, you have to do the practice properly. Okay, thank you very much.